So, hello, my dear friends. Today, in this Toppers Talk, we have yet another topper with us who has topped the examination of NABARD 2024. And he belongs to Nagar. And Nagar in Maharashtra is known for its history, right? And Prasad has also made a history by selecting into NABARD 2024 with his limited effort. And this is the first time he has appeared for the examination, right? And many things we'll know about the examination, that how Nawad made it into the examination in his first attempt only. And there will be a lot of things that Prasad will be sharing, and we will like to hear from him, right? हम सुनना चाहेंगे प्रसाद से that how the things went on, कैसे आपने first attempt में निकाला, क्या चीज रहा जो that clicked for you, which has not clicked for the others, and जो भी आप सुझाव देंगे that will be really important for the upcoming examination and upcoming students who will be appearing. So with this, I would like to congratulate you first, Prasad, for your Thank you, sir. history making effort, and you have selected into the award select list of 2024. Thank you, sir. Thank you very much. And thank you for your guidance, sir. Because of you only, I am here, sir. Thank you, thank you. If some student says that, right, it means a lot to me as a mentor. So, Prasad, we'd like to start from your education background, right? What you have done and when you graduated, and after that, what you have been doing in this time frame. Yes, sir. Sir, I completed my graduation in agriculture engineering Hmm. during the duration from 2016 to 2020 from Mahatma Krishi Vidyapith, Rahuri. And since then, I was preparing for the competitive examinations. Okay, good. So basically, he is also right engineer by discipline. Though agriculture Yes. engineer and many agriculture engineering students also discuss with me, Prasad, the things. They face a little bit of difficulty, and they whenever they call me, they say that, कि, sir, if agriculture engineering discipline like specialization vacancy doesn't comes up, then we will not be able to fight for the journalist. हमारे पास उतना knowledge नहीं है. So you prove it to be wrong. You are also agriculture engineer, right? You have fought the thing Yes. and you have got selected for the in journalist only. So Yes. जितने भी students है, all the students, my suggestion would be, see, it doesn't matter you're from which background, coming from which background, which discipline you have taken your subject. If you want it, you will get it. Right, sir. Definitely. Now, coming on to the phase one examination, Prasad, so many papers, 8 papers, the Right. qualifying papers and the merit section. So first, we'll Yes. know shortly about the qualifying paper of QRE and Okay. decision making and computer. What was your take on this? ओके सर सर क्योंकि मेरे पास तो टाइम कम था तो इसलिए वन थिंग तो श्योर की थी मैंने कि बिफोर एनी पेपर आई विल एनालाइज माई सेल्फ आई विल डू शॉर्ट एनालिसिस सो तो क्यूआरई के बारे में बात करें तो मैंने लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे थे तो क्यूआरई ज्यादा डिफिकल्ट वो पूछते नहीं है और कट ऑफ भी लिमिटेड ही जाता है तो Hmm. आई डायरेक्टली अटेम्प्टेड लास्ट 3 years पेपर एंड आई वाज गेटिंग डिसेंट मार्क्स सो आई डिडंट put a lot of effort in that domain. In computer section, I put the effort. The notes provided by some of the institutions, I refer that. And decision making, the notes provided by the Clarity only, I refer that, sir. Good, good. So that is the thing. Now coming on to the main thing, Prasad, the merit section, right? Yes, ESI, sir. ARD, and GA. How will you explain the things to the students? Means when they are starting with the thing, बहुत से students को मान लो experience होता है. Many students do not have any experience. They are starting afresh. So what do you suggest you that ARD, what should be their take? How they should prepare this subject of agriculture and rural development, keeping in mind the preparation for the mains as well. Okay. Sir, the AID paper, if we analyze the PYQs, then the AID mostly focused on the static part only. And in the static part, there are 4 5 major subjects. The questions revolved around that subject, that domain only, like animal husbandry, agronomy, then horticulture, and soil and water conservation, and other these like of subjects. So Mhm. the people starting freshly, uh, अगर कोई फ्रेशली स्टार्ट कर रहा है तो PYQ analysis I will say the important and the means outlining the resources is very important because sir when I came across your notes the clarity notes I ensure that these will be my final notes I will prefer these notes until my means last stage or up to the phase 2 so I prepared from that notes only because the ARD subject means ARD syllabus itself is a vast we have to means limit our efforts around the limited sources only. Then we can means maximize our result through ARD, sir.
Okay. One example we'll take, like you have mentioned many of the chapters like animal husbandry, soil sciences. So let us take one example to decode the thing for the students. Let's take example of soil science. And it Yes, is an important chapter for the examination. From last few years, they're asking continuously question from soil science. right, So sir. you have the notes with you, right? You have the resources with you, right? Everything is with you. Now, when you go into the practical thing, see, notes सबके पास होता है. Everybody has the notes. That is not a big deal. Exactly. When you start studying, that is the main thing, how you are studying the notes. So when you started with the notes reading, means what was your take? Means you used to line by line or ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया, means how many times you have studied the notes, means what is the methodology of reading the notes? Yes, sir. सर हियर पीवाईक्यू एनालिसिस कम्स टू रेस्क्यू. मैंने पीवाईक्यू देख लिए थे, तो वो मेजरली जो फैक्चुअल थिंग्स है वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं एआरडी में भी. लाइक हम्म पीएच ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल्स और प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में क्या क्या होता है और सॉइल टाइप. तो मैंने आपके नोट्स फर्स्टली रीड किए कंप्लीटली. उसके बाद सेकंड रिवीजन की और उसके शॉर्ट नोट्स निकाल लिए मैंने. तो पूरा सॉइल का जो है तो 2 पेजेस में मैंने कवर अप किया. मैंने ये इंश्योर किया कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वहां पे वो सारे के सारे मेरे नोट्स में आ जाए. क्योंकि फेज 1 ऐसा है कि यहाँ पे फैक्ट आपने आपके माइंड में प्रिंट ही चाहिए, तभी एमसीक्यू अटेम्प्ट हम कर सकते हैं. तो मैंने फर्स्ट रिवीजन, देन सेकंड रिवीजन, एंड थर्डली आई completed means took out my notes, and after that my handwritten notes will be my final resource up to the Right, up to the paper, sir. In right. this way I followed the method. Right. So that is a very important thing you mentioned, that multiple revisions. And if you have time, right, if you're not having right pressure of the work and all, if you're not working, then you can definitely write the thing. जो हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है. That is a reality, right? Yes, sir. Yes, So sir. that you have done, that is a very good thing. So all the freshers, I would suggest you that if you have time, you can write small one, not lengthy notes. You can write in a very small, concise way. That is helpful Yes, for sir. revision. Coming on to the chapter of your ESI, right? Economic and social issue, where also many students face the problem, especially those are from the biology or the agriculture background, Mhm. right? Economic and social issue. What is your take on that? Means static ESI, current ESI, schemes be here, right? Scheme section is also there. So how you used to read the schemes? कैसे आप cover करते थे, right? स्टैटिक ईएसआई किया या नहीं किया, और करंट ईएसआई में और कौन कौन से टॉपिक्स को आपने ध्यान दिया? ओके सर, मैंने फर्स्टली ईएसआई का सिलेबस देखा और पीवाईक्यू देखे, तो उससे पता चला कि उनका मींस फोकस ज्यादा करंट पार्ट पे है. तो जो ईएसआई का स्टैटिक पार्ट था वो आई 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 हैड यूपीएससी बैकग्राउंड, तो मैक्सिमम चीजें मेरे माइंड में थी कि क्या क्या है इसमें और क्या कंसेप्ट है. तो आई डायरेक्टली फोकस्ड अपॉन द करंट पार्ट. For that, the schemes and the reports and other current affairs. Means आपने मेंटरशिप सेशन में बताया था कि कौन से स्कीम्स पे फोकस करना चाहिए, और आपने कुछ जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उन पे वीडियो भी दिए थे, यम जी नरेगा या हम्म नारेले मुख पे. तो हम्म उन नोट्स के मींस उन लेक्चर्स के मैंने प्रिसाइज नोट्स बनाए थे. और ये जो स्कीम्स है इनके जो फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम्म फीचर्स के अराउंड ही क्वेश्चन पूछते हैं. तो हम्म स्कीम्स, रिपोर्ट एंड करंट पार्ट जो भी आप प्रोवाइड कर रहे थे, तो इन्हीं के अराउंड मैंने ज्यादा फोकस किया. ओके, स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड द करंट थिंग. Nowadays और एक चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे, प्रसाद विल लाइक टू डिस्कस दैट विल enlighten the students. Schemes nowadays they are asking slightly on a different manner. थोड़ा सा, right, they are going to the application part, how it is helping the beneficiaries, right? This type of, we have seen in RBI also, this type of question they are asking nowadays. So what is the take? How you have done this, miss, your preparation for this, or what will you suggest to the students to study this application part of the schemes? ओके सर, एप्लीकेशन के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज्यादा जरूरी है स्कीम्स की भी, क्योंकि हम्म हम अगर उनका जो फीचर्स देखें, तो अगर फीचर्स डीप में पढ़े और जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उनके पर्टिकुलरली डीप में पढ़े और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करे, तो वो माइंडसेट मींस वो आ जाता है ना कि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पे कैसे करना है. और ये भी था कि लास्ट ईयर जो आपने टेस्ट भी प्रोवाइड किए थे उनमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ डाले थे बहुत ज्यादा. तो हम्म उसकी वजह से वो नैक आ गया था कि कैसे करना है. तो जो हम्म ट्रेडिशनल हमारा पैटर्न है कि पढ़ने का स्कीम का मींस विजन और ज्यादा ये जो चीजें हम्म वो तो पढ़नी ही है, लेकिन उसके जो हम्म फीचर्स वाले पार्ट है उसको ज्यादा डीपर वे में जाकर पढ़ना आई थिंक विल हेल्प अस. One more thing, Prasad. See, schemes they ask in prelims also. Scheme they ask in the mains as well.
10 Yes. मार्कर क्वेश्चन में पूछ ले, हो सकता है 15 मार्कर क्वेश्चन में पूछ ले. तो ऑलवेज स्टूडेंट हैव दिस डाउट एंड दे कीप ऑन आस्किंग, राइट, कि सर विच स्कीम टू रीड फॉर द मेंस एज वेल. सो हाउ डिड यू डन योर स्टडी फॉर दिस? किसको आपने बाइफरकेट किया कि नहीं, इसको मेरे को मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना, बिकॉज मेंस में भी आया था स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी. तो आपने उस चीज Right. को कैसे बाइफरकेट किया? इसके बारे में प्रीलिम्स के बाद सोचना स्टार्ट किया, और यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस, you have to read the schemes like that? I'm preparing for the mains descriptive as well. यस सर, अगर स्कीम्स का फेज वन में अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, मतलब 2-3 महीने जो हम फेज वन का करते हैं, तो उसमें अगर डीपर वे में जाकर अगेन अगेन रिवाइज कर ले स्कीम्स को, तो वैसे भी अगर 10 मार्क और वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10-11 पॉइंट वैसे भी माइंड में आ जाते हैं, क्योंकि रिवीजन इतनी हो जाती है फेज वन की प्रिपरेशन में इटसेल्फ. और आफ्टर फेज वन we should prepare the short notes of the some of the major schemes, like लास्ट ईयर उन्होंने स्वामित्व पूछा था, तो आपने बोला भी था वैसे कि ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के अराउंड स्कीम्स के अराउंड शॉर्ट नोट्स चाहिए, आई विल सजेस्ट, एंड उसके ऊपर ही आंसर हम लिख सकते हैं. और फेज वन में प्रिपेयर करते वक्त ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि इसका विजन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कि हम लिख सकते हैं. तो उस वे में भी पढ़ना चाहिए फेज वन में करते ही वक्त, क्योंकि स्कीम्स का इम्पोर्टेंट बढ़ता ही जा रहा है. Right, right, right. So calculative efforts for the descriptive, that is more important, I think. यस, सब यस schemes के सर. descriptive तो हम पढ़ नहीं सकते, right? That is not possible. राइट, राइट सर, राइट. Okay. Now coming on to Prasad, the mains of this examination, right? Again, two paper rules, right? ESI, ARD again. What I feel is that मेरा मानना है कि the objective is more important. Objective is the kingmaker of the examination, right? यस. Objective में नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता, right? So what was your take? मतलब 2 marker question आते हैं यहाँ पे, paragraph based question, right? So राइट. what will you suggest to the fresh candidates that how they should prepare for this 2 marker paragraph based questions? इसके लिए अलग methodology चाहिए, या फिर आप जो starting से कर रहे हो that will only suffice? एक्चुअली सर, आपने मतलब हमारे प्रिपरेशन के वक्त भी बहुत बताया था कि ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, लेकिन मैं उतना कर नहीं पाया था. उसी की वजह से मतलब ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम ही रह रहा है मेरा स्कोर. लेकिन आपने जैसे बताया कि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इफ वी टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी, देन मैंने एक्चुअली जो कर रहा था वही फॉलो किया था. और एक्स्ट्रा जो जो स्कीम्स है उन पे डीपर जाके, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन, इन थीम्स के अराउंड वो क्वेश्चन रेगुलरली पूछते हैं. एआरडी में जाए तो एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके अराउंड भी क्वेश्चन Hmm. वो आते हैं. तो आई थिंक द पीवाईक्यू एनालिसिस एंड means outlining the important chapters for the phase 2, objective phase 2 will help us, and the more practice can also means widen the horizon of knowledge that will help us to tackle the objective section in phase 2, sir. Right. And for the descriptive part of the examination, what is your take? How have you practiced the mocks, or just you with your prior knowledge only you went on to write the examination? नो सर, एक्चुअली आफ्टर द फेज वन आई मीन्स मुझे होप नहीं थी कि हो जाएगा फेज वन का, तो मैंने बाकी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी, तो 20 दिन वेस्ट हो गए थे. तो आई विल सजेस्ट कि राइट आफ्टर फेज वन यू शुड स्टार्ट फॉर द फेज टू. लेकिन जब रिजल्ट आया तो तब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे पास 20 दिन बच रहे थे. तो एक इंश्योर किया कि मेरे पास कंटेंट तो था, क्योंकि बैकग्राउंड था Hmm. थोड़ा यूपीएससी का. तो Hmm. मैंने एक इंश्योर किया कि अगले 20 डेज आई विल अटेम्प्ट अ मॉक डेली. तो मैंने 20 मॉक्स अटेम्प्ट किए. क्लैरिटी के भी सारे के सारे किए. आई थिंक वन आई मिस्ड एंड अदर इंस्टीट्यूशन, और कुछ मेरे खुद के. तो ऐसा Hmm. करके डेली प्रैक्टिस किया. मुझे लगता है कि फेज टू में प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं. अगर यू हैव द राइट आंसर राइटिंग स्किल्स, देन यू Hmm. कैन टैकल द दैट क्वेश्चन विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज आल्सो. तो Right. आई थिंक. थोड़ा सा Prasad, share something, enlighten the students about the, as you have little bit of UPSC experience also, as you said. So how to structure the answer in examinations like RBA or NABARD, right? Online method of typing, it's not like pen and paper method. So anything you have followed to structure your answers in the examination with conclusion, body, or subheaders, whatever it may be. Yes. Sir, the intro body conclusion is the common thing. Everyone knows about that. Here is more important that कि एग्जामिनर को आपके आंसर्स बाकियों से अलग दिखने चाहिए. इसके लिए Right. आपका नॉलेज भी शो होना चाहिए, और आपका Hmm. इंट्रो पढ़ते ही उनको ये लगना चाहिए कि इस बंदे ने अच्छा कुछ लिखा होगा आगे. उनको इंटरेस्ट आना चाहिए बॉडी रीड करने में भी. Hmm. इसलिए मैंने ये इंश्योर किया था कि जो इंट्रो है
उसी में कुछ करंट न्यूज डाली जाए, कुछ फैक्ट हम्म, डाली जाए, कुछ रिपोर्ट्स डाली जाए, ताकि हम्म, उसका अलाइनमेंट बन जाए आंसर का। और अगर बॉडी में बात करूं, तो बॉडी में एक ये था कि हर आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने एक एग्जांपल डाला ही था, गुड। कहाँ का भी हो। और वन थिंग, एक और भी चीज की थी कि आंसर में अगर नाबार्ड के रिलेटेड कोई है आंसर, हम्म, लाइक फार्म मैकेनाइजेशन और ऐसा कुछ, तो एक किया था कि केस स्टडी करके नाबार्ड का वर्क डाला था वहां पे, क्योंकि फेज वन का करते वक्त हमें आइडिया आ जाता है कि क्या क्या नाबार्ड ने हम्म, किया है। हम्म, तो एक ये इंश्योर किया था कि ये भी आ जाए, क्योंकि नाबार्ड की एग्जाम है तो उनका कुछ वर्क हाईलाइट करे, ऐसा मुझे लग रहा था। हम्म, और सेकंड थिंग कि जो पूछा है वही लिखना है, क्योंकि जो हमें पता है वो ना, लेकिन जो उन्होंने पूछा है वही लिखना है। और स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर करना है मतलब जितना डायमेंशंस में ब्रेक कर सके उतना करना है। और राइटिंग में ज्यादा तो प्रैक्टिकल रखना है, इन द सेंस कि एग्जांपल ज्यादा डालने हैं। और कंक्लूजन हम्म, की बात करूँ तो वी शुड हैव अ पंचिंग लाइन एट द एंड, सो दैट, क्योंकि एग्जामिनर जो मार्क्स देते हैं वो आफ्टर कंक्लूजन ही देते हैं रीड करने का। उनके माइंड में पॉजिटिव फीडबैक छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। तो कंक्लूजन, आई थिंक we can prepare the conclusion, intro and conclusion beforehand only, because they are asking the questions on similar things only. So just like rural credit institution, financial inclusion, इन कुछ टॉपिक के बारे में हमारे पास इंट्रो और कंक्लूजन रेडी हो तो अच्छा होगा। राइट। सो बैंग ऑन टू द टारगेट, बहुत ही इफेक्टिव एंड efficient चीज तूने बताया, right? For the students, it will definitely help you. And if all you watching, please rewind this and whatever he has said, please listen it again. Definitely, he एकदम accurate points he has told right now. This will Yes, sir. definitely help you to score more marks in the examination. Very good. And sir, one more thing. Yes, yes. Yes, sir. Sir, the ornamentation of the answer is also important, because अगर हम पेन पेपर पे लिखते हैं तो हम वहाँ पे बॉक्स वगैरह कुछ कर Mm-hmm. सकते हैं, कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे वो स्कोप होता नहीं है, क्योंकि टाइपिंग फॉर्मेट है। Mm-hmm. तो आपके आंसर राइटिंग सेशन भी मैंने देखे थे, तो आपने बताया था कि means आपने कुछ मॉडल आंसर्स भी शेयर किए थे वहाँ पे। तो Mm-hmm. वन थिंग आई पिक अप फ्रॉम देयर इज दैट जब भी सब हेडिंग डाले हम, तो वो हाईलाइट होना चाहिए, एग्जामिनर को दिखना चाहिए। तो ये किया कि आइदर इसको बोल्ड लेटर में मीन्स कैपिटल लेटर में लिखा, और उसके बाद उसकी जो नीचे वाली लाइन पे वहां पे एक स्टार लाइन, स्टार की लाइन ड्रॉ कर दी। Mm-hmm. इसका इफेक्ट ये होता है कि एग्जामिनर को पता चलता है सारे के सारे डायमेंशन अटैच किए हैं इन्होंने, Right, और right. हाईलाइट किया है ये। Right. So again, a good point. The cosmetization of your answer is also very important, as he has said. Good, very good. That यस will help many students, definitely. Now coming on to the one more paper, English descriptive, 100 marks. We can't neglect it, right? यस So इसके यस। बारे में थोड़ा सा students को बताओ that how they should prepare for this paper. ओके सर, द एसे पार्ट आई विल से, Hmm. मैंने ज्यादातर जो पिछले 3-4 साल में जो टॉपिक उन्होंने पूछे हैं उनका रिसर्च किया, तो आइडिया आ गया था कि इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, यूथ, ऐसे टॉपिक के वो पूछते हैं। आई थिंक यूथ का कुछ तो ऐसे पूछा था बाद में। Hmm. अब Hmm. इसी साल इन्होंने फिर एक बार यूथ पे पूछा है, तो Hmm. मैंने इन टॉपिक पे थोड़ा सा रिसर्च किया था कि क्या क्या लिख सकते हैं। एक थिंग, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर एंड कंटेंट, दोनों को Hmm. इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ग्रामर को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर, दे ग्रामर सीरियसली। तो Hmm. टेक्निकली योर essay should be correct. For that I used different platform like Grammarly. Grammarly, तो yes. ग्रामर करेक्ट करने का यूज किया। सेकेंडली फॉर द कंटेंट पार्ट, आई मीन्स लिखते वक्त ये कि एकल में ज्यादा से ज्यादा जस्ट आर्ग्यूमेंट देके छोड़ना नहीं है, क्योंकि आई थिंक उनका ऐसे था कि यूथ क्या कर सकता है Hmm. एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप इसमें। तो एंटरप्रेन्योरशिप में लिखते वक्त मैंने बहुत बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर की एग्जांपल भी दी थी, एग्री रिलेटेड एंड अदर सेक्टर। सो दीज वेर सॉरी सर। No, no issue, no issue. Okay, that would have helped you. And now coming on to the interview part of the examination, which is also very important nowadays, 50 marks. सबको डर रहता है, पता नहीं how much they will give you. Sometimes they give 45 plus also to somebody get 30, 32 also. And किसी राइट को सर। मान लो 30 आ गया, किसी को 45 आ गया, तो out of game तो ऐसे ही है, मतलब most probably. So what was your experience and any suggestions from your side related to interview? यस सर।
सर इंटरव्यू एक्चुअली अभी मार्क्स आउट हुए नहीं, तो एग्जैक्टली आई डोंट नो हाउ आई परफॉर्म देयर, बट ये तो किया था कि जो दो तीन पिलर होते हैं कि आपका बैकग्राउंड, देन आपकी डिग्री एंड नाबार्ड इंस्टीट्यूशंस, इन तीन चीजों के अराउंड मैंने प्रिपेयर किया था। वहां पे मुझे इंटरव्यू में एक्चुअली उन्होंने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया था कि नाबार्ड पर्टिकुलर डोमेन में क्या क्या कर रहा है, लाइक एफपीओज में, लाइक वुमेन्स के लिए, फार्म फूड प्रोसेसिंग सेक्टर उनके लिए। तो आई प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, एंड आपके साथ फोन पे बहुत बार बात भी हुई थी कि आपने बोला था कि इन चीजों पे ज्यादा नाबार्ड का फोकस रहता है, तो वहीं पे कराया था। और मॉक्स आई थिंक रियली हेल्प अस। मॉक दिए थे मैंने 4-5 जगह पे, और उनके फीडबैक पे ही काम किया था। राइट। या डेफिनेटली मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। एक हेजिटेशन जो रहता है हमारे अंदर वो निकल जाता है। सो स्टूडेंट शुड गिव मॉक्स इन मल्टीपल प्लेसेस। दिस इज माय सजेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। हेजिटेशन राइट निकल सर। जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। That is thing. My राइट। last question would be to you, Prasad. Any three suggestions, right? What students should not do? करने को तो बहुत कुछ है. What they should not do in this preparation time for the NABARD examination? Okay. Sir, I think one thing is you should have a clear mind. Sir, are you getting my voice? Yes. Yes, sir. Sir, firstly, we should have a clear mind about our resources, our strategy. Because once we sit and अगर हमने एक बार बैठ के स्ट्रेटजी फिक्स कर ली, तो उसको फॉलो ही करना है उसी तरह से। यहाँ पे एनालिसिस तो है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चीजें रिमेम्बर करनी है, तो इसके लिए आई विल से द शॉर्ट नोट्स विल हेल्प अस। अगर आपके पास टाइम है तो शॉर्ट नोट्स बनाए। थर्डली, द स्ट्रेटजी शुड बी एज मच प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। इतना टाइम है तो इतना करना है, जस्ट उतना ही करना है, और ज्यादा मीन्स सोर्सेस को डाइवर्सिफाई नहीं करें तो अच्छा होगा। क्योंकि मैं अगर Hmm. बात करूँ तो एक बार जब मैंने क्लैरिटी के नोट्स देखे तो उसी दिन मैंने फाइनल किया था कि यही होगी, इसलिए ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेस पढ़ेंगे तो नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन वहां रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा. Hmm. पॉजिटिविटी आल्सो हेल्प अस मींस ड्यूरिंग द Right. प्रिपरेशन। Definitely. So thank you, Prasad, for giving so much right tips to the student. That will definitely help because you've just given the examination and whatever you say, it matters to the upcoming students, right, for the examination. And I would like to यस। wish all the best for your future endeavors in the NABARD. Best of luck, Prasad, for all the things. थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा हेल्प की है पूरे प्रोसेस में। आप मीन्स एक कॉल की दूरी पे ही थे सिर्फ, क्योंकि आपने मेन स्टेज में, इंटरव्यू के स्टेज में बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आए थे, तो आपसे बात Mm-hmm. करके बहुत अच्छा लग रहा था कि लग रहा था कि कोई हमारे साथ है। तो वो फीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसने कॉन्फिडेंस बनाए रखा, और Definitely. आपकी मदद से हेल्प की Thank you so much for such beautiful words and gesture from your side. Thanks a lot, Prasad. है। थैंक यू सर। Okay.